Dear student, today we will see chapter number 2, parallel lines. Let's start. What are parallel lines? The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. Okay? If the lines do not meet each other, then those lines are called as parallel lines. Let's say example. Here we have line L and here we have another line M, and you can see that line L and line M do not meet each other, do not intersect each other. Even the distance between those two lines is same. Such lines are called as parallel lines. So in this figure, line L and line M are parallel lines. Symbolically, we can write this as line L parallel line M. You can see there are two vertical lines. That is a symbol for parallel line. So you can say that line L parallel line M. What is a transversal? If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. Let's say example. Here we have line L. Here we have another line M. And you can see that both the lines are intersected by a third line X, and you can see that line X intersect line L and line M at point A and B respectively. So this line X intersect line L and M at two different points. Therefore, line X is a transversal of line L and line M. Angles made by a transversal. If a line intersects two lines at two different points, then 8 angles are formed. Let's say example, here we have line L and line M, and they are intersected by a line X. So here line X is a transversal of line L and M, and this transversal forms 4 angles with lines L and M. Let's see, here we have angle A, that is the first angle, angle B, second angle, angle C, that is third angle, angle D, fourth angle, fifth angle is E, sixth angle is F, seventh angle is G, and eighth angle is H. So total here we have 8 angles in this figure. So make a note, if any transversal intersect two lines at a different points, then 8 angles are formed. These angles are grouped in different pairs of angles. Let's study the pairs. What are pairs of corresponding angles? Look at the figure. In this figure, line X is transversal of line L and M. There are 8 angles in this figure. Make a note, corresponding angles are on the same side of a transversal. You can see the transversal X. To the left hand side of transversal X, there are 2 pairs of corresponding angles. Let's see, here angle A and angle E. They are on the left hand side of transversal X, and it is the first pair of corresponding angle in this figure. Now here we have more 2 angles to the left hand side of a transversal X. They are angle D and angle G. And angle D and angle G is the next pair of corresponding angles. So here we saw that there are 2 pairs of corresponding angles to the left hand side of transversal X. Similarly, we have 2 more pairs of corresponding angle to the right hand side of transversal X. They are angle B and angle F is the third pair of corresponding angle, and angle C and angle H is the next pair of corresponding angles. So total we have 4 pairs of corresponding angle, 2 pairs on one side of a transversal X and 2 pairs on the other side of transversal X. And if line L and M are parallel, then corresponding angles formed in this figure will be congruent. So angle A congruent to angle E,
angle D congruent angle G, angle B congruent angle F, and angle C congruent angle H. So you can see that all four pairs of corresponding angles are congruent. Why? Since line L and line M are parallel. Pairs of interior angles. Here we have a figure. In this figure, line X is transversal of line L and line M. There are two pairs of interior angles in this figure. Interior, you can see the word interior. Interior means inside. So there are four angles inside the parallel line L and M. They are angle D, angle C, angle F, and angle E. These four angles will form two pairs of interior angles in this figure. So here we have the first figure, the first pair of interior angles, angle D and angle E. You can see that angle D and angle E are inside the parallel lines and they are on the same side of a transversal. So angle D and angle E is first pair of interior angles. Now we have more two angles inside this parallel line, C and F, and they are also on the same side of a transversal. So angle C and angle F is the next pair of interior angles. If line L parallel line M, then angle D plus angle E equals to 180 degree. Angle C plus angle F equals to 180 degree. It means if any transversal intersect two parallel lines at different points, then the interior angles formed in this figure will be supplementary. Supplementary means sum of those two interior angle would be 180 degree. Pairs of alternate angles. Here we have a figure. In this figure, line X is transversal of line L and M. There are four pairs of alternate angles. They are classified as interior alternate angles and exterior alternate angles. It means there are two pairs of interior alternate angles and two pairs of exterior alternate angles. First we will see interior alternate angles. You can see that there is one word, interior means inside. Okay, so interior alternate angles are pairs of angles which are formed inside the parallel line. Okay, you can see in this figure angle D and angle F are inside the parallel lines and it is one pair of interior alternate angles. So make a note that the angle should be inside the parallel line and they would be the cross angle. You can see angle D and angle F are cross angle. So angle D and angle F is first pair of interior alternate angles. Angle C and angle E is another pair of interior alternate angles. You can see that those two angles are also inside the parallel lines and they are cross angle. So angle C and angle E is the next pair of interior alternate angles. Now we will see exterior alternate angles. You can see there is a word exterior. Exterior means outside the parallel line. And look at in this figure, there are four angles outside of these two parallel lines. They are angle A, angle B, angle G and angle H. So in this figure, angle A and angle G is one pair of exterior alternate angles. Angle B and angle H is the next pair of exterior alternate angles. So angle A and angle G are outside of those two parallel lines and they are cross angle. Angle B and angle H are outside the parallel line and they are cross angles. So angle A and angle G is one pair of exterior alternate angles. Angle B and angle H is the next pair of exterior alternate angles. And if line L parallel line M, then angle D congruent angle F, angle C congruent angle E, angle A congruent angle G and angle B congruent angle H. It means if a transversal intersect two parallel lines, then alternate angles formed by them are congruent.
In this chapter, we are going to learn one important theorem, that is alternate angles test. Let's start. Alternate angles test. Let's see the statement of this theorem. If a pair of alternate angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. So what is given in this statement? What we know in this statement? We know that the pair of alternate angles are congruent. Okay, and we have to prove that those two lines are parallel. So look at figure. You can see this in this figure. Line N is a transversal of line L and M. So in a given, we can write that line N is a transversal of line L and line M. And what else is given in this? It's given that pair of alternate angles are congruent. So look at this figure. Here I have taken angle A and angle B as one pair of alternate angles. And it's given that these two angles are congruent. So it means it is given that angle A congruent angle B, that we will add in given part. Now we will go for the proof of what I have to prove. I have to prove that line L parallel line M. Let's see the proof of this. Now look at this figure. Here I am going to take one angle as C. You can see the figure. You can see that I have taken one of the angle as C. Now look at the proof of this theorem. Angle A plus angle C equals to 180 degree because they forms linear pair. That is equation number 1. You can see in this figure. Can you find angle A and C? You can see that angle A and C, right? They forms linear pair. Therefore, sum of these two angle is 180. Now here it is given that angle A congruent angle B, right? You can see in this figure, angle A and angle B are congruent. Why? It's a given alternate angles are congruent. That is equation number 2. Now let's see equation 1 and 2. Okay, what we will do, we will replace angle A of equation 1 by angle B because A and B are equals. So we will replace A by B of equation number 1. So you will get a new equation, angle B plus angle C equals to 180 degree. This we got from equation 1 and 2. Look at this figure. Can you find angle B and C in this figure? Yes. What type of angles are they? They are interior angles, and we know that if the interior angles are supplementary, then the lines are parallel. Therefore, line L parallel line M according to interior angles test. Let's start. Corresponding angle theorem. Let's see the statement of this theorem. The corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are of equal measures. So in this statement, what is given? There are two parallel lines and they are intersected by a transversal. And we have to prove that corresponding angles formed in this figure are of equal measures. So we will take two parallel lines and one transversals. You can see that in this figure, line L and line M are parallel to each other, and line N is a transversal of those two parallel lines. So what is given? Line L parallel line M and line N is their transversals. Now there are four pairs of corresponding angles in this figure. We will take any one pair of corresponding angles. So let's see in this figure, I have taken angle A and angle B as one pair of corresponding angle. And what I have to prove? Those two corresponding angles are of equal measures. So I have to prove here angle A equals to angle B. Okay, to prove angle A equals to angle B, we will take one angle. We'll name one more angles in this figure. You can see in this figure, I have taken adjacent angles to A as C, right? Now we will go for the proof. Angle A plus angle C equals to 180 degree since they are angles in linear pair, and that is our equation number 1. You can see in this figure, angle A and angle C forms linear pair, right? Therefore, the sum of these two angles is 180 degree.
angle B plus angle C equals to 180 degree because of interior angle theorem. What is interior angle theorem? If any transversal intersect two parallel lines, then the interior angles formed by transversal of those two parallel lines are supplementary. So look at this figure. Here angle B and angle C is a pair of interior angles, and interior angles are supplementary when the lines are parallel. Okay, look at your equation 1 and 2. You can see their right hand sides are same, that is 180. Therefore, angle A plus angle C equals to angle B plus angle C. This statement we got by comparing equation 1 and 2. Now you can see that this equation has one common angle C. We will eliminate angle C from both the sides. We will get angle A equals to angle B. Hence you can say that the corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are of equal measure. इस वीडियो में हम एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। और इस लेसन को अगर आपको समझना है स्टूडेंट्स अच्छी तरह, तो कुछ कंसेप्ट है जो आपको एकदम क्लियर करना पड़ेगा। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर अल्टरनेट एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा आपको। फिर इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है लीनियर पेयर्स किसको बोलते हैं, और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाता है तो ये लेसन जो है ऑलमोस्ट आपके लिए इजी बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल से कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। तो जैसे ये फिगर आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है सपोज करिए, और पैरेलल का मीनिंग आपको अब तो समझ में आता ही होगा कि दो लाइन के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो अगर इक्वल है हर जगह पे तो उस लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और उसको जो इंटरसेक्ट करके लाइन जाता है दूसरा लाइन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो अगर स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल नहीं है तब तक उस पैरेलल लाइंस में कोई एंगल नहीं होते। लेकिन जैसे एक ट्रांसवर्सल हम ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 8 एंगल्स बन जाते हैं। और फिर यहीं से शुरुआत होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। तो हमें एक एक करके समझना है कि किन किन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, किसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, फिर किसको हम फिर इंटीरियर भी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी बोलते हैं, और लीनियर पेयर बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स से। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है स्टूडेंट्स और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल अगर आप देख रहे हो तो इसके जैसा एंगल यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। आप जैसा मूवमेंट देख रहे हैं ऐसा करके ऐसा, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। और अगर मेजर में भी आप देखोगे तो मेजर में दोनों इक्वल रहेंगे। और उस तरीके, और अगर अलग तरीके से देखते हो तो जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पे ई है, एफ है, जी है, एच है। जैसे यहाँ पे 4 डॉट है जिसमें से इस तरफ वाला डॉट ए है, तो यहाँ पे भी 4 डॉट है जिसमें से इस तरफ वाला डॉट ई है। तो ए एंगल और ई एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला इक्वल है, इसका नाम हम एंगल ए बोल सकते हैं अगर इस ऐसा अगर लिखा रहेगा तो। नहीं तो अगर इस ये जो पॉइंट दिया इससे अगर बताना हो तो एंगल डी, ऐसा शुरू किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे गए तो एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इक्वल रहेगा एंगल एच जी एस को, एंगल एच जी एस को। तो ए की जगह पे ई है और इसीलिए एंगल डी एच पी इक्वल हो रहा है एंगल एच जी एस को। तो ये पहला करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह टोटल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल हमको दिख रहे हैं, तो 4 के चारों को बताते हैं। जैसे अब ये वाला देखते हैं तो ये एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल इस तरीके से बन रहा है। और उसी तरह अगर यहाँ पे 4 डॉट में से सेकेंड डॉट देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे भी 4 डॉट में से सेकेंड डॉट इस तरफ देखें तो एफ है, तो बी के इक्वल में एफ है और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल डी एच आर ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल एच जी एम को। ऐसा एंगल बन रहा है, इसके लिए हम डी से शुरू करेंगे, एच पे आएंगे, एच से फिर आर की तरफ जाएंगे। और ये भी ऐसा बनेगा, इसके लिए हम पॉइंट एच से शुरू करेंगे, जी पे आएंगे और फिर एम की तरफ चलेंगे। तो जो दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा वो एंगल डी एच आर
DHR ये इक्वल रहेगा या आप कॉन्ग्रुएंट बोलिए एंगल HGM को, एंगल HGM को। फिर थर्ड देखिए, फर्स्ट सेकंड हो गया, तो थर्ड अगर हम नीचे ले रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हमको यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा। तो C एंगल जो है वो एंगल G के इक्वल में, और C एंगल किस तरह बना है स्टूडेंट्स, इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है, तो हम उसको इस तरह नाम दे सकते हैं RHG। तो एंगल RHG 7 के जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे भी 7 के जैसा बन रहा है MGK, तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल MGK के। तो 3 करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बता दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अब ये एक बच रहा है D और यहाँ पे बच रहा है H। तो एंगल D जो है वो एंगल H के इक्वल में रहेगा, और D के ये एंगल किस तरह बना है स्टूडेंट्स, इस तरीके से बना है, या आप इस तरीके से ही बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से लेंगे तो इसका नाम बनेगा PHG, और अगर आप ऐसा लेते हो तो इसका नाम बनेगा GHP, आप किसी एक तरीके से ले सकते हो। तो हम लेते हैं इस तरह एंगल PHG, फोर्थ वाला एंगल PHG ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, PHG कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल SGK को, एंगल SGK को। तो ये है 4 एंगल स्टूडेंट्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल जिनको बोला जाता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल में रहता है, ये एंगल इसके इक्वल में रहता है, ये एंगल इसके इक्वल में रहता है, और ये एंगल इसके इक्वल में रहता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जिसमें से हमको अल्टरनेट वर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो अल्टरनेट एंगल सीखने से पहले स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता रहा हूँ कि करस्पॉन्डिंग में हमने देखा कि 4 पेयर होता है, लेकिन अल्टरनेट में सिर्फ 2 पेयर होता है। तो करस्पॉन्डिंग में ये जो 2 लाइन पैरेलल है, इसके ऊपर जो 2 एंगल है B और A, और ये लाइन के नीचे जो 2 एंगल है G और H, ये अल्टरनेट में आपको नहीं मिलेंगे, ये दोनों एंगल आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये 4 एंगल में हमको अल्टरनेट एंगल समझना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब ये लाइन के अंदर होते हैं। चलिए फिर देखते हैं अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं। तो देखिए अब हमको ये सिर्फ ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल से मतलब है। तो ये एंगल का नाम है RHG, फिर ये एंगल का जो नाम है वो है PH, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो PHG, और ये एंगल का नाम है एंगल HGS, क्योंकि ये पॉइंट का नाम H है, G और S, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम है एंगल HGM। तो सिर्फ ये 4 एंगल ही अल्टरनेट एंगल में आते हैं, और जिनको हम बोल सकते हैं 2 पेयर्स। तो अल्टरनेट के सिर्फ 2 पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, और 4 एंगल हो जाएंगे, तो 2 पेयर हमको यहाँ पे लिखना है। और अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब अल्टरनेट एंगल में हम जब जो भी एंगल लिखेंगे वो इक्वल मेजर्स के होते हैं, और करस्पॉन्डिंग भी मेजर्स इक्वल मेजर्स के होते हैं। तो जैसे इस तरफ वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल RHG, ऐसा वाला एंगल वो इस तरफ वाले एंगल के इक्वल में होता है, मतलब ये और ये इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिंगल मार्किंग की है, तो एंगल RHG ये इक्वल मेजर में, आप अगर D से मेजर करेंगे दोनों को प्रोट्रैक्टर से, तो आपको सेम मेजर मिलेगा। तो RHG अगर लाइन पैरेलल होगा तभी स्टूडेंट्स, तो एंगल RHG ये इक्वल रहेगा एंगल HGS को, तो ये हो जाएगा एंगल HGS को, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। तो फर्स्ट वाला ये लिया और ये लिया, तो सेकंड वाला इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला रहेगा, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एंगल PHG। तो एंगल PHG ये इक्वल रहेगा या कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल PHG हमने ले लिया है, वो रहेगा इसको, तो इसका नाम बोल सकते हैं एंगल HGM। तो एंगल HGM को सिर्फ ये 2 पेयर होते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ का अल्टरनेट एंगल यहाँ पे, यहाँ का अल्टरनेट एंगल यहाँ पे, इसका करस्पॉन्डिंग नीचे आएगा स्टूडेंट्स, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा। तो करस्पॉन्डिंग में जैसा यहाँ के 4 होते हैं वैसे यहाँ के भी 4 होते हैं। चलिए अल्टरनेट के बाद अब हम देखते हैं इंटीरियर किसको बोलते हैं। तो इंटीरियर एंगल सीखना है, लेकिन अल्टरनेट एंगल जो हमने देखा था कि अल्टरनेट एंगल दोनों लाइन के अंदर ही होते हैं, तो इंटीरियर एंगल भी दोनों लाइन के अंदर ही होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इंटीरियर एंगल भी ये और ये इन चारों में से ही होंगे। फर्क इतना है कि अल्टरनेट में ये वाला एंगल के इक्वल में था, इस तरफ वाला के इक्वल में था, जिसको Z हम समझते थे।
और इस तरफ वाला एंगल इस तरफ वाले को इक्वल था। लेकिन इंटीरियर में हम जब एंगल लेंगे तो यहाँ वाला एंगल और उसी साइड में यहाँ वाला एंगल लेंगे, और यहाँ वाला एंगल और उसी साइड में यहाँ वाला एंगल लेंगे। तो ये दोनों एंगल आप अगर देखते हो स्टूडेंट्स तो ये इक्वल नहीं होते कभी भी, क्योंकि आप इसका साइज़ देखिए, ये ऐसा है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब 90 से बड़ा हो जाएगा, और ये आप देख रहे हो तो ये छोटा सा है, तो 90 से छोटा रहेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल कहाँ से होंगे? ये दोनों एंगल इक्वल होते हमने देखा अल्टरनेट एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हमने देखा अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर में लेकिन हमको इधर उधर नहीं जाना है, हमको सेम साइड में ही रहना। तो सेम साइड का एंगल ये दोनों है और यही दोनों इंटीरियर एंगल है। पर इंटीरियर एंगल जैसे दो एंगल में इंटीरियर बोलते हैं, जैसे एंगल PHG, एंगल PHG, ये एंगल इंटीरियर है किसके लिए? PHG एंगल इसके लिए, इसका नाम है HGS को, तो एंगल HGS को। तो एंगल PHG और एंगल HGS ये दोनों भी इंटीरियर हैं, और इंटीरियर का मतलब इक्वल नहीं होता है, लेकिन हाँ उनका मतलब होता है कि अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल को प्लस करने पे हमको 180 डिग्री मिलेगा इंटीरियर एंगल। अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल को प्लस करने पे हमको 180 मिलेगा, और लाइन के ट्रांसवर्सल के इस तरफ का जो सेम साइड है वहाँ के भी दोनों एंगल को प्लस करके हमको 180 मिलेगा। तो उसका भी दो पेयर होता है, जिसका सेकंड पेयर हम लिखते हैं। तो ये एंगल का नाम रहेगा एंगल RHG। ये प्लस करेंगे अगर हम लोग इस वाले एंगल से, ऐसा बोलिए या ऐसा बोलिए, एंगल HGM से, एंगल HGM से, तो वो भी हमको कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि करस्पॉन्डिंग में एंगल्स इक्वल होते हैं, मेजर्स इक्वल होते हैं। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री रहेगा, ये अगर 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री रहेगा। मतलब ये चार एंगल जिस भी मेजर करेंगे ये चार एंगल भी उसी मेजर करेगा। फिर हमने अल्टरनेट भी सेम देखा कि ये एंगल अगर 30 डिग्री है या 40 डिग्री है या 50 डिग्री है तो ये भी उसी तरह 30, 40, 50 रहेगा, और ये अगर 110 है तो ये भी 110 रहेगा। तो अल्टरनेट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन जब हम इंटीरियर एंगल देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो ये इक्वल नहीं होते। इंटीरियर एंगल सेम साइड में होते हैं और वो इक्वल नहीं होते, उनको प्लस करके 180 मिलता है। बस ये हमको याद रखना है कि इंटीरियर एंगल को प्लस करके 180 आता है। चलिए अब दो कंसेप्ट जो बच रहा है वो भी देख लेते हैं, फिर ये लेसन को ये प्रैक्टिस सेट हम 2.1 शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं लीनियर पेयर्स। तो जिसमें पेयर का मतलब 2 होता है, मतलब 2 एंगल होगा, और लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। तो हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है तो दोनों मिला के कितना हो जाता है? 180 डिग्री। और इसीलिए हम बोलते हैं कि लीनियर पेयर के दोनों एंगल को मिलाएंगे, पेयर्स मतलब दो एंगल को, तो वो 180 होगा। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ले लेते हैं जो 60 डिग्री का रहेगा। अब सीधा लिया था 90 डिग्री था तो इस तरफ भी 90 था, इस तरफ भी 90 था, लेकिन अगर हम 60 ले लेंगे राइट साइड में तो अब हमको पता है कि यहाँ पे 120 डिग्री बचेगा। तो इसको भी मिलाएंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो उसी तरह अगर हम ये एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो ये एंगल को और ये एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 180 होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन हमेशा इस तरह देखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं कि अगर ये लाइन स्ट्रेट है और यहाँ पे एक एंगल है तो ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा। जैसे अगर ये केस में देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये एंगल को और ये एंगल को अगर प्लस करेंगे तो 180 आएगा। फिर से ये स्ट्रेट लाइन में हम नीचे भी आ सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन में ये एक एंगल बनता है, सॉरी ये एक स्ट्रेट लाइन में ये एक एंगल और ये एक एंगल को प्लस करेंगे तो भी 180 हो जाएगा। मतलब ऐसा एंगल और ऐसा एंगल अगर हम प्लस करेंगे तो 180 होगा। मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180, फिर से ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 और ये एंगल प्लस ये एंगल 180। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी 180 मिल रहा है। मतलब इसे 4 यहाँ पे एंगल हम बना सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको ऐड करने पे हमको कितना मिलेगा? 180। आपको सिर्फ याद रखना है कि लाइन कैसे भी होने दीजिए, उसके अंदर अगर 2 एंगल बना है तो वो स्ट्रेट लाइन है, अगर लीनियर है तो उसके अंदर 2 एंगल अगर बना है तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री मिलता है। और ऐसा आप जब भी करोगे तो वहाँ पे रीजन में लिखोगे एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। मतलब जिसका जो रूल रहेगा वो रूल लिखेंगे। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा था, इसके लिए हम लिखेंगे एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। चलिए इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद 2.1 शुरू करेंगे। तो वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन
तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है और उसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसी तरह इस तरफ का एंगल और इस तरफ का एंगल भी इक्वल होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है, इसको भी हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसा सिचुएशन आप जहां पे भी देखोगे आप एंगल को इक्वल बता सकते हो और रीजन आपको लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक लाइन गया है और ये एक लाइन गया है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसका हम नाम बोल सकते हैं एंगल DHP और एंगल RHG, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं RHD और इसका नाम हम बोल सकते हैं PHG। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल रहेंगे मेजर में, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल रहेंगे। उसी तरह इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। चलिए अब हम सारे कंसेप्ट देख लिए हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि करस्पॉन्डिंग एंगल के टोटल 4 पेयर्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे 4 चीज होते हैं वैसे यहाँ पे भी 4, जिस तरह यहाँ पे 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, उसी तरह यहाँ पे भी 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट राइट वाला फर्स्ट राइट के बराबर है, सेकंड लेफ्ट वाला सेकंड लेफ्ट के बराबर है, थर्ड डाउन वाला थर्ड डाउन के बराबर है, फिर फोर्थ डाउन वाला राइट साइड में फोर्थ डाउन के बराबर है, और इस तरीके से नाम भी हमको देना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद फिर हम अल्टरनेट एंगल हमने देखा था, उसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोला जाता है क्योंकि वो लाइन के अंदर ही होते हैं और वो 2 पेयर होते हैं सिर्फ। इस तरफ वाला एंगल इस तरफ के इक्वल में होता है, मतलब ये वाला एंगल के इक्वल में है, और इस तरफ वाला एंगल इस तरफ वाला एंगल के इक्वल में होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उसके बाद हमने इंटीरियर देखा था। इंटीरियर में हमको पता है कि इंटीरियर वो भी लाइन के अंदर ही रहेगा लेकिन सेम साइड में रहेगा और दोनों को प्लस करके 180 आएगा। यहाँ पे वो इक्वल नहीं होते, इस तरफ वाले को इस तरफ से प्लस करेंगे तो 180 आएगा और इस तरफ वाले को इस तरफ वाले से प्लस करेंगे तो 180 आएगा। फिर लीनियर पेयर में हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में जो 2 एंगल बनते हैं दोनों को प्लस करके 180 आता है, और वो स्ट्रेट लाइन आप किसी तरह से भी ले सकते हैं। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने देखा कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और वो इक्वल होते हैं। और फिर अब हमको शुरू करना है 2.1, तो चलिए 2.1 शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 का। और इसमें क्या लिखा कि इन द फिगर 2.5, ये है 2.5 फिगर स्टूडेंट्स, लाइन RP इज पैरेलल टू MS। तो ये जो लाइन RP है ये लाइन MS को पैरेलल है, एंड लाइन DK इज देयर ट्रांसवर्सल, और लाइन DK जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल का रूल जो है तभी अप्लाई होएगा जब ये लाइन पैरेलल होंगे, और इसीलिए ये चीज़ देना ज़रूरी है। तो देखिए अब इसमें लिखा है कि एंगल DHP, ये वाला जो एंगल है वो 85 डिग्री दिया हुआ है, और फिर हमसे क्या बोला कि जो 4 एंगल्स है वो आप फाइंड आउट करो। तो जिसमें से फर्स्ट एंगल जो है वो हमको बोला है कि एंगल RHD फाइंड आउट करिए। तो एंगल RHD कहाँ पे स्टूडेंट्स? एंगल RHD यहाँ पे है। अब देखिए ये करस्पॉन्डिंग है इसका, पर ये वैल्यू हमको नहीं पता, इसके लिए ये भी हमको नहीं पता है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है किसका? इसका, पर ये और ये दोनों भी नहीं पता है, तो इसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लीनियर पेयर बना रहा है स्टूडेंट्स वो इसका बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर ये एंगल को और ये एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और जिसमें से सेकेंड एंगल हमारे पास है 85 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल मिल सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल या मेजर एंगल लिखिए, मेजर एंगल RHD प्लस मेजर एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो RHD हमको नहीं पता है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर मेजर एंगल RHD प्लस DHP हमको पता है, DHP वो 85 डिग्री दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 85 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल RHD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इस तरफ चला जाएगा माइनस 85 डिग्री। तो 180 में से अगर हम 85 माइनस करेंगे तो हमको 95 मिलेगा, बिकॉज 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और 5 और माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमको मिल गया स्टूडेंट्स, ये मिल गया हमको 95 डिग्री। तो चलिए अब ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमको 95 मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है एंगल PHG।
तो एंगल PHG कहाँ पे, देखिए एंगल PHG। अब अगर ये एंगल आप देखते हो स्टूडेंट्स, तो ये दोनों लाइन को अगर हम इस तरह यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जिसमें से ये एंगल हमसे पूछा है P यहाँ पे है, H यहाँ पे है और G यहाँ पे है, तो ये एंगल भी 95 डिग्री हो जाएगा इसके वजह से। और अगर आप ये स्ट्रेट लाइन देख के करते हो तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 करके आप लीनियर पेयर से भी बता सकते हो। तो आप किसी से बता सकते हैं, मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल से बता रहा हूँ। तो हम लोग लिखेंगे एंगल RHD, मेजर एंगल RHD इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल, लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल, देखिए RHD ये PHG को कॉन्ग्रुएंट है, मेजर एंगल PHG को, और इसका रीजन रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेजर एंगल RHD ये इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल PHG को, और दोनों का वैल्यू हो जाएगा 95 डिग्री। तो हमको PHG भी मिल गया स्टूडेंट्स, ये मिल गया हमको 95 डिग्री। तो चलिए अब इसके बाद हमसे पूछा है थर्ड वाला, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे 95 डिग्री मिला हमको, ये भी 95 डिग्री मिला है। अब हमसे पूछा है HGS, तो HGS ये वाला एंगल पूछा है स्टूडेंट्स, तो हम थर्ड वाला लिखते हैं एंगल HGS। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल अगर आप देखोगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने आपको बोला था कि 4 डॉट यहाँ पे और 4 डॉट यहाँ पे अगर है तो ये फर्स्ट वाले के इक्वल में होता है। तो ऐसे 4 एंगल यहाँ पे हैं और 4 एंगल यहाँ पे है, तो ये फर्स्ट वाला एंगल ये फर्स्ट वाले एंगल के इक्वल में होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मेजर एंगल DHP इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल HGS, मेजर एंगल HGS, और इसका रीजन आ जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। और फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर मेजर एंगल DHP ये अब इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल HGS के, और दोनों का वैल्यू अब हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये हो जाएगा 85 डिग्री, तो ये हमको मिल गया 85 डिग्री। चलिए अभी फोर्थ है वो देख लेते हैं। तो ये 95 डिग्री मिला हमको, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 95 डिग्री मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 85 डिग्री मिल गया। अब हमसे जो पूछा है वो फोर्थ वाला है, और वो पूछा है एंगल MGK। तो एंगल MGK ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल में है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मेजर एंगल MGK ये इक्वल हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजर एंगल, देखिए MGK कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल HGS के, मेजर एंगल HGS के, और रीजन रहेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेजर एंगल MGK इक्वल हो जाएगा मेजर एंगल HGS के, और उसका भी वैल्यू हो जाएगा 85 डिग्री। तो ये भी हमको मिल गया 85 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि इन फिगर 2.6 जो ये फिगर है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। तो लाइन P जो है वो लाइन Q को पैरेलल है, एंड लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल्स, 2 ट्रांसवर्सल है यहाँ पे। एक तो लाइन L है ये वाला, और दूसरा अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो वो है लाइन M इस तरीके से। फिर हमको क्या बोला कि हेंस मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, तो कुछ मेजर्स दिखाए गए हैं। हमको बोला कि हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ABCD। तो ABC और D के वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल दिखते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे 110 लिखा है, और यहाँ पे B लिखा है। तो ये B का वैल्यू कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल है, सॉरी ये दोनों अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फोर्थ पे B है, तो यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ पे ये है। तो ये वैल्यू अगर दिया होता तो हम ये फाइंड आउट कर लेते थे। फिर दूसरा है कि अगर ये लेते हैं तो ये दोनों पैरेलल है जैसा ये है, और ये हमको 115 डिग्री दिया है,
यहाँ पे डी पूछा है और यहाँ पे सी पूछा है। तो देखिए अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये वाला एंगल के इक्वल में है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और यहाँ पे 115 हमको दिया भी है, तो सी का वैल्यू हमको 115 मिल जाएगा। और ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको 180 मिल जाएगा लीनियर पेयर से, तो डी भी मिल जाएगा। सिर्फ ये बी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये दोनों एंगल हम करस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे वैल्यू और एक अल्फ़ाबेट हमको और अज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज हम यहाँ पे ए बी सी डी है तो ई ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल हम ई ले लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले एंगल ए फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर के लिए ये एक एंगल है जिसमें दो एंगल हमको मिल रहा है, मतलब इस तरीके से। तो हमको पता है ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस, इसका नाम नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो अब क्या करते हैं, एंगल ए को यहाँ पे रखते हैं और प्लस 110 को यहाँ पे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और ये मिल जाएगा हमको 70 डिग्री। तो ये हमको मिल गया 70 डिग्री। तो चलिए अब एंगल बी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमको 70 मिल गया। अब एंगल बी फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमने ई लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप देखते हो तो एंगल ए और एंगल ई ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अगर पैरेलल है इसको और ये ट्रांसवर्सल है तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो सेकेंड एंगल पे ई आ रहा है और यहाँ पे सेकेंड एंगल पे ए आ रहा है और ए का वैल्यू हमने 70 फाइंड आउट किया है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, तो लाइन L इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E और उसका रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल E के और उसका वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल E हमको मिल गया 70, जो हमको फाइंड आउट तो नहीं करना है। लेकिन अगर एंगल E 70 डिग्री मिला है तो इसके जस्ट पीछे है एंगल B और वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, या हम लिख सकते हैं फिर से कि एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B और इसका रीज़न लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल E इज इक्वल टू एंगल B और विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमको B कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा स्टूडेंट्स। पहले हमने इन दोनों को इक्वल बताया क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे और ये ट्रांसवर्सल था तो करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। फिर हमने इसको और इसको इक्वल बताया क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए ये हमको 70 डिग्री मिला था, ये हमने E लिया है और ये भी हमको 70 डिग्री अभी मिला। अब देखिए अगर हम ये दोनों पैरेलल लाइन लेकर ये ट्रांसवर्सल दिखते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम है। देखिए ये और ये करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल C का वैल्यू 115 मिल जाएगा। फिर इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, स्ट्रेट लाइन को ले लेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा एंगल से लीनियर पेयर। तो पहले C फाइंड आउट करते हैं और हम लिखते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल C ये इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू 115 डिग्री और इसका रीज़न आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद ये एंगल को और ये एंगल को प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो हम ये कर लेते हैं इसके बाद और हम लिखते हैं कि एंगल D, मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल D प्लस 115 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न रहेगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मेजर एंगल डी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो चलिए डी हमको मिल गया 65 डिग्री, सी हमको 115 डिग्री मिला था, ये हमको लीनियर पेयर से 70 डिग्री मिला था, ये करस्पॉन्डिंग से 70 डिग्री मिला था, और ये मिल गया था वर्टिकल अपोजिट एंगल से 70 डिग्री। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर 2.7 जो ये है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो लाइन L और लाइन M दोनों पैरेलल हैं, एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P, और लाइन N और लाइन P भी पैरेलल है स्टूडेंट्स। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, वो सारी चीज़ यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये भी ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर अगर हम उल्टा देखते हैं कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इधर और इधर भी आ जाएंगे, और फिर से ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ और यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो चारों जगह पे हम वो रिलेशन दिखा सकते हैं, क्योंकि चारों लाइन पैरेलल है, मतलब दो एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमको ए बी सी के एंगल फाइंड करने, ए बी सी के मेजर्स फाइंड करने का फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एंगल। तो देखिए अगर ए मुझे मिल गया तो बी मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और दूसरा कि अगर ए मुझे मिला तो सी भी मुझे मिल सकता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि जब ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये बाजू बाजू वाले एंगल अल्टरनेट होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, जेड वाला सिस्टम। या आप दूसरी तरह बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। पर सबसे पहली बात है कि ये एंगल मिलना चाहिए, क्योंकि ये मिला तो ये मिल जाएगा और ये मिला तो ये भी मिल जाएगा। और हमको जो दिया है वो 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे आ रहा है जो यहाँ पे दिया नहीं है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल यहाँ पे आ रहा है जो यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है, इसका लीनियर पेयर वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है तो वो भी दिया नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर हमने एक वैल्यू ले लिया तो हमको ये मिल जाएगा, इसका लीनियर पेयर यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स। और अगर यहाँ पे हमने लिया तो एक कोई अल्फाबेट अगर यहाँ पे अज्यूम किया तो उसका वैल्यू अगर हमको मिला तो हम इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। या अगर हमने यहाँ पे ले लिया तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल हमको मिलेगा, फिर इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, क्योंकि इंटीरियर एंगल होगा। हम बेटर है कि यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लेते ए बी सी और यहाँ पे ले लेते वैल्यू डी, फिर इन दोनों को प्लस करके हमको 180 मिलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये दोनों इक्वल मिलेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। तो चलिए हम पहले डी का वैल्यू फाइंड करते हैं, और हम लिखते हैं कि एंगल डी प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये हमको मिल गया 135 डिग्री। तो डी 135 मिल गया स्टूडेंट्स। अब अगर डी 135 है तो ए भी 135 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, फर्स्ट सेकेंड, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। तो इसका रीजन लिखेंगे, या हमको पूरा लाइन पैरेलल बनाना पड़ेगा, तो चलिए वैसा पूरा लिखते हैं। तो चलिए डी हमको 135 डिग्री मिल गया स्टूडेंट्स, ये हमको 135 डिग्री मिला है। तो चलिए एंगल ए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एंगल ए के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये लाइन पैरेलल है इसको और ये ट्रांसवर्सल है, और इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, एंड लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, एंड लाइन पी इज transversal. Therefore, angle D is congruent to angle A. तो एंगल D जो है वो A को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो हम लिखेंगे एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, और इसका रिजल्ट लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर हम लिख सकते हैं therefore एंगल D इज इक्वल टू एंगल A विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पे हमको ये भी मिल गया 135 डिग्री। अब हम डायरेक्टली बी बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एंगल
ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और इसका रीजन लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और विच इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो ये भी हमको मिल जाएगा 135 डिग्री। अब इन दोनों को हम अल्टरनेट बता सकते हैं स्टूडेंट्स, या इन दोनों को हम करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग बताएंगे तो ये लाइन पैरेलल बताना पड़ेगा और ये ट्रांसवर्सल। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो चलिए हम बोलते हैं कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन N and line M is transversal and line M is transversal. Therefore angle B ये इक्वल हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C को, और इसका रीजन रहेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। Therefore एंगल B ये इक्वल हो जाएगा एंगल C को, और दोनों का वैल्यू हो जाएगा 135 डिग्री। तो ये भी मिल जाएगा हमको 135 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि इन द फिगर 2.8 ये वाला साइड्स ऑफ एंगल PQR के जो दो साइड है, एक PQ और एक QR, एंड एंगल XYZ और एंगल XYZ के जो दो साइड हैं XY और YZ आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब PQ जो है वो XY को पैरेलल है, आगे भी आप बढ़ा के समझ सकते हैं। फिर YZ जो है वो QR को पैरेलल है, इसको आगे भी आप बढ़ा के समझ सकते हैं। तो हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल PQR, ये जो एंगल है यहाँ वाला एंगल, ये एंगल और एंगल XYZ का एंगल Y जो है ये दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप पहले थोड़ा सा समझिए कि कभी कभी किसी ड्राइंग में जो फिगर हमको दिया हुआ रहता है, तो जैसा फिगर रहता है वैसे पे हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। हमको अपनी तरफ से इसके अंदर एक्स्ट्रा ड्राइंग करना पड़ता है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये फिगर में हमको वही करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। और कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ पे हमको जो XY है इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है आगे तक स्ट्रेट करके, और वो इस पॉइंट को, इस लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए, जिससे ऐसा हमको उसको करना है, इसको हमको एक्सटेंड करना है सो दैट कि वो QR को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। और कंस्ट्रक्शन है इसके लिए हम उसको डॉट 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 से बताएंगे, जबकि वो स्ट्रेट है, लाइन ही है वो, लेकिन सिंस हमने कुछ नया किया है वो बताने के लिए हमको ऐसा डॉट 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 लाइन पे बताना पड़ता है। तो अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट्स इस तरीके से, और हमको प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल इक्वल, आप ध्यान से समझिए कि ये एंगल और ये एंगल को हमको प्रूव करना है। और हमने किया क्या, इसको स्ट्रेट कर दिया बस, और उसने क्या किया, इस QR को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। इसके बाद अगर हम इसको इस तरह समझते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह, तो देखिए अगर ये PQ और XY पैरेलल है, जो यहाँ पे बोला कि साइड उनके एंगल के साइड इक्वल है, तो PQ और XY पैरेलल होने का मतलब पूरा आगे तक पैरेलल है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल हमने प्रूव किया, जबकि हमको ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा उसके बेस पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये वाला एंगल फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला एंगल इक्वल रहेगा। तो एक चीज हमने बताया कि ये और ये इक्वल है, जबकि हमको बताना है ये और ये इक्वल। फिर अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करके इस तरह समझते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा, तो अब देखिए क्या हो सकता है। पहले हमने ये दोनों बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताया है, जबकि मैंने आपको बोला कि हमको ये एंगल और ये एंगल बताना है। तो अब हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके समझा है सिर्फ। तो अब अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि हमको बोला कि एंगल के साइड्स पैरेलल है, तो ये एंगल का ये साइड और ये एंगल का ये साइड पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं पूरा लाइन समझ सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए पहले हमने क्या सोचा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर अब हम समझते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये जो एंगल देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल, ये फर्स्ट टाइम इसको इक्वल था,
और अब यही एंगल इसको इक्वल है, तो ये एंगल तो दोनों में आ रहा है ना, इसके भी इक्वल है और वो इसके भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल रहेगा। मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, और ये एंगल अगर 30 डिग्री का तो ये भी 30 डिग्री का, मतलब ये दोनों एंगल भी तो 30 डिग्री के हो गए। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि फिर ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमने क्या किया, पहला बताया कि हमने लिया कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने बोला ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और फिर हम बाद में बोलेंगे कि देयरफॉर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम कि कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं कि हम एक्स वाई को एक्सटेंड कर रहे हैं, रे एक्स वाई को हम एक्सटेंड करेंगे, या एक्स वाई को सेगमेंट एक्स वाई को हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड या एक्सटेंडिंग सेगमेंट एक्स वाई सच दैट इसको इस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे कि वो क्यू आर को, रे क्यू आर को वो इंटरसेक्ट करना चाहिए, सच दैट इट इंटरसेक्ट रे क्यू आर को ये इंटरसेक्ट करना चाहिए। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे एस ले लेते हैं, तो क्यू आर एट पॉइंट एस। तो इसका मतलब है कि हमने एक्स क्यू को इतना आगे बढ़ाया है कि उसने क्यू आर को पॉइंट एस पे इंटरसेक्ट किया, और इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंड क्यू डैश एस डैश आर, मतलब ये कोलिनियर है। और एक चीज़ रहेगा एंड एक्स डैश वाई डैश एस डैश, सॉरी एक्स वाई एस, ये भी डैश में आ जाएंगे, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं एंड एक्स डैश वाई डैश एस। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, इसको शुरू करते हैं प्रूफ। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम बोलेंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पे बोला कि साइड पी क्यू और साइड एक्स वाई इक्वल रहेगा, सॉरी पैरेलल रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि लाइन लिखिए या सेगमेंट लिखिए, हम इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में पकड़ेंगे, इसके लिए हम लाइन समझेंगे स्टूडेंट्स, को रे नहीं लेंगे। तो हम बोलेंगे कि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स वाई। क्यों, ये गिवन है, बोल सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको, इसके लिए हम उसको बोलेंगे गिवन। और हम बोल सकते हैं कि दैट इज, इसका एक ही मतलब है कि पी क्यू अगर एक्स वाई को पैरेलल है तो पी क्यू एक्स एस को पैरेलल है, मतलब लाइन तो वही है, सिर्फ आगे तक गया है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन एक्स एस को वो पैरेलल है। और फिर इस पे ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये वाला ट्रांसवर्सल हम इस तरीके से ले रहे हैं कि ये दोनों लाइन को पैरेलल लेंगे और ये ट्रांसवर्सल रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ऑन ट्रांसवर्सल क्यू आर, तो क्यू आर वो ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। इस तरीके से स्टूडेंट्स कि ये दोनों पैरेलल रहेगा और ये ट्रांसवर्सल रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो फिर हम लिखते हैं कि देयरफॉर, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल पी क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स एस आर, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसका रीजन आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों को पैरेलल लेते हैं और ये ट्रांसवर्सल लेते हैं। अगर हमने देखा था इस तरीके से कि हम ये दोनों को पैरेलल समझेंगे और ये ट्रांसवर्सल समझेंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि लाइन एक्स वाई इज पैरेलल टू लाइन क्यू आर ऑन ट्रांसवर्सल, या एंड ऐसा लिख सकते हैं कि एंड ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑन ट्रांसवर्सल एक्स एस, तो एक्स एक्स ट्रांसवर्सल है।
तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा और ये ट्रांसवर्सल रहेगा अगर, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एक्स एस आर को, एंगल एक्स एस आर को। ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर आप इस तरह समझते हो तो, कि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि अगर ये इसको हम इसका रीजन लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो अब अगर दोनों को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या बोला कि PQR है, PQR एंगल जो है, एंगल PQR ये वाला एंगल वो एंगल XSR को इक्वल है, एंगल XSR को इसको इक्वल है। तो ये इसमें बताया हमने, ये वाला इसको इक्वल है। और सेकेंड में हम बोलते हैं कि एंगल XYZ ये XR को इक्वल है। फिर सेकेंड में हम बोलते हैं कि ये वाला एंगल को इक्वल है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो XSR ये दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ये PQR XSR को कॉन्ग्रुएंट है और यही XSR XYZ को कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि PQR और XYZ भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल PQR is congruent to एंगल XYZ। और यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था स्टूडेंट्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है स्टूडेंट्स के इन फिगर 2.9 जो ये है, AB इज पैरेलल टू CD, AB CD को पैरेलल है एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, और PQ क्या है उसका ट्रांसवर्सल है। मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज गिवन, एक एंगल का मेजर दिया है 105 डिग्री, हेंस फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो बाकी के एंगल्स को हमको फाइंड करना है। तो देखिए एंगल ART, अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि लाइन इस तरीके से क्रॉस हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। तो इसका अगर मेजर 105 डिग्री है तो इसका भी मेजर 105 डिग्री रहेगा, तो ये एंगल आपको 105 डिग्री मिल जाएगा। फिर एंगल CTQ, हमको ये एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो ये एंगल किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखा है एंगल DTQ, ये वाला एंगल। तो देखिए ये एंगल हमको मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 105 डिग्री है तो ये भी 105 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा। तो ये पहले आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर एंगल PRB, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हम इसको लीनियर पेयर ले सकते हैं, इसको एक स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, और ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री बता के ये ले सकते हैं स्टूडेंट्स। और उसी तरह जो ये है CTQ, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के हम बोल सकते हैं 180 डिग्री, और ये भी वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये आप खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, ये इजी है, हमने पहले भी सम्स किया है क्वेश्चन नंबर 1 भी। आप वैसे स्टेप वैसे फॉलो करिए और इसको आप सॉल्व करिए। चलिए प्रैक्टिस सेट 2.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 से। थैंक यू वेरी मच।